back to my channel. My name is Prachi Sharma, and due to some technical difficulties in the last session that we did, the ending was not uploaded. And in the end, I was talking about the introduction of molarity. So this is a very quick and short video discussing only the introduction of molarity. If you want to go further, the next session goes into the detail of it, and the one after that we are doing numericals based upon this topic. So without wasting any time, let's have a quick introduction of molarity. Okay students, so let's get started. So the first thing that I would like you to understand is about the concentration terms. हमारी terms क्या क्या होती हैं? So concentration terms. So the first one that we have is molarity. The second is normality. Let me leave some space in between. Then we have molality. Then mole fraction. Then you have parts per million. Then formality. Then number 7th is your percentage terms. And percentage terms I have already taught in the last session. So that was W by W, that was weight by by volume और volume by volume. ये मैं already last session में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है? So in today's session we are starting with molarity. It's a quick introduction video. Moles I have also taught in the last session towards the end. Let's get started with the basic understanding of molarity. Okay, so when we talk about molarity, सबसे पहले हमें ये समझना है कि molarity को हम denote कैसे करते हैं. अगर हमें कहीं लिखा दिखता है क्वेश्चन में या सेंटेंस में, so how do we know it is molarity or they are talking about molarity? So either they can write M along with that. So molarity is denoted by letter M and capital M ही. So let me just give you all the representations. So molarity का we have capital M, normality का we have capital N, molality का we have small m, mole fraction का you have a very weird symbol which looks like X and known as chi, parts per million is ppm, formality is capital F. And students, why do you have to remember these only? Because if you talk about normality, अगर आपने small n लिख दिया तो आप number of moles की बात कर रहे हैं, normality की बात नहीं कर रहे हैं. Capital M है तो molarity है, small m है तो molality है, ठीक है? So you have to be very specific about these terms. Now let's move ahead. So we represent molarity by capital M. The next is the definition. So पहले definition लिखते हैं, then formula देखते हैं. So molarity is defined as the number of moles of solute dissolved per liter of solution. ठीक है students? So as the definition is saying, so definition is important. कई बार exams में पूछ लेते हैं, so definition you have to be very specific about. So we can find out directly from the definition the formula for molarity. So molarity क्या होती है? It is the number of moles of solute divided by the or dissolved in per unit of your solution, per liter of your solution. So divided by the volume. So let me write the formula for you. So molarity equals N upon V. और जो ये आपका N है, this is number of moles. किसके number of moles? Solute के number of moles. ठीक है? और जो ये V है, ये क्या है? ये है volume of what? Volume of solution
एंड कितने में, कौन सी यूनिट है उसकी, लीटर्स। आई बात समझ में? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू n अपॉन v। n क्या है? n है नंबर ऑफ मोल्स। किसके नंबर ऑफ मोल्स है? सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स। और डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में v है। v क्या है? वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम है? सोल्यूशन का वॉल्यूम है। किस यूनिट में है? लीटर्स में है। Students, all of this information is very important. Please make sure that you remember it. अगर आपको वॉल्यूम मिलीलीटर्स में दी जाती है क्वेश्चन में और आपको वो इस फॉर्मूला में रखनी है, तो आप क्या करेंगे? आप डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। सो अगर आप डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, सो आई जस्ट राइट डिवाइड योर वॉल्यूम, डिवाइड वॉल्यूम बाय 1000 to convert from milliliters to liters. ठीक है? So V milliliters, to convert that you can write milliliters over 1000 to convert that into liters. Now a lot of students would be like, मैम ये तो पता है, ऐसे स्पेशली लिखने की क्या जरूरत है? स्टूडेंट्स, आपके नोट्स बहुत ही अच्छे से डिटेल में बने होने चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट जस्ट गोना स्टे विद यू राइट नाउ। आपको 2 साल के एंड में भी अगर रिवाइज करना पड़े तो आपको पता होना चाहिए कि आपको ml को लीटर्स में कन्वर्ट करना था। आपके पास इतना टाइम नहीं होता उस टाइम रिवाइज करने का। यू वांट टू बी वेरी क्विक विद द रिवीजन, तो ये स्पेसिफिकली लिख दो ताकि नोटिस में आए, यूनिट मिस ना हो जाए आपकी। ठीक है? प्लीज स्पेसिफिकली राइट दिस इन योर नोट्स। नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ हमने लास्ट सेशन में क्या था, मोल्स क्या होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का हमारा क्या फॉर्मूला था? n was equal to mass in grams, repeat after me, mass in grams divided by molecular mass। और किस चीज का हम बात कर रहे हैं? जिस भी चीज के आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स सल्यूट के कैलकुलेट कर रहे हैं तो दोनों ही चीजें आप सल्यूट की करेंगे, एंड सिमिलरली अगर आप सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो दोनों ही चीजें आप सोल्यूशन की लेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। और किसका कर रहे हैं हम? जिस भी चीज का हमें मोल, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं उसका कर रहे हैं हम। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव अहेड। अब क्योंकि हमारी मोलारिटी में, कैन यू सी, मोलारिटी में वी हैव अ वी देयर, क्योंकि हमारे मोलारिटी के फॉर्मूला में वॉल्यूम आती है, therefore molarity is temperature dependent। ठीक है स्टूडेंट्स, so let me write that molarity is temperature dependent। जब भी आपके किसी भी फॉर्मूला में वॉल्यूम होगी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। ठीक है? नाउ लेट्स सी कैसे चेंज आता है। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या था मोलारिटी का फॉर्मूला? जोर से बोलिए, रिपीट आफ्टर मी। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर मोलारिटी? इट वाज n अपॉन v। n क्या है? n इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम किसकी? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और क्या यूनिट थी इसकी? इन लीटर्स। ठीक है? सो दिस वॉज मोलारिटी। इससे हमें पता चलता है कि मोलारिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। नाउ लेट मी राइट समथिंग फॉर यू, दैट इज टेम्परेचर लिखिए आप यहाँ पे, वॉल्यूम लिखिए और मोलारिटी लिखिए। ठीक है? अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होती है, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो मोलारिटी डिक्रीज होगी स्टूडेंट्स। क्यों डिक्रीज होगी? बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, सॉरी वॉल्यूम के। ठीक है? नाउ इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस तो आपकी वॉल्यूम भी डिक्रीज होगी, और क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो आपकी मोलारिटी इंक्रीज होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप दिस मेक सेंस टू यू। आप ये चार्ट बना सकते हैं अपने नोट्स में। So it's important for you to go through the content properly, revise it, say it out loud. So let's quickly go through this again.
जब हम मोलारिटी की बात करते हैं, पहली चीज, मोलारिटी इज डिनोटेड बाय द लेटर M, capital M. What is the definition for molarity? Molarity is defined as the number of moles of solute dissolved in per liter of solution. अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो M is equals to N upon V. N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स. किसके नंबर ऑफ मोल्स? सल्यूट के, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स, N का फॉर्मूला क्या था हमारा? इट वॉज वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट. ओके स्टूडेंट्स, प्लीज कीप रिपीटिंग थिंग्स and keep practicing stuff. So keep repeating this after me. Number of moles क्या था? Number of moles was weight in grams divided by molecular weight. और हम किसका लेंगे ये दोनों इंफॉर्मेशन? जिस भी चीज का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं उसका लेंगे. आप सल्यूट का कर रहे हैं, आप सल्यूट का करिए. सॉल्वेंट का कर रहे हैं, सॉल्वेंट का लीजिए. या फिर सोल्यूशन का कर रहे हैं तो सोल्यूशन का लीजिए. ठीक है ना. अगर आपकी वॉल्यूम लीटर्स में दे रखी है, सॉरी मिलीलीटर्स में दे रखी है और आपको लीटर में कन्वर्ट करनी है, आप 1000 से डिवाइड करेंगे. या तो आप पहले डिवाइड कर लीजिएगा या तो जब फॉर्मूला में रख रहे हैं तब डिवाइड कर लीजिए. इट इज अप टू यू. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मोल्स. हमने फॉर्मूला रिवाइज कर लिया. नाउ टेम्परेचर. मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके. सो अगर टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा, मोलारिटी आपकी डिक्रीज होगी. टेम्परेचर आपका डिक्रीज होगा, मोलारिटी आपकी इंक्रीज होगी. ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज इट फॉर द सेशन. So this is it for today's session, students. The details after this for molarity, that is the relationship with mass percentage, that we have covered in the next session in detail, deriving the formula and understanding more details about this topic. Okay, and the session after that we have covered numericals on this particular topic. The reason I keep repeating things with you and I ask you to say it out loud and write it clearly is because I want to save your self study time. That means मैं नहीं चाहती कि आप पहले सेशन अटेंड करें, फिर जाके आप नोट्स बनाएं और फिर नोट्स के बाद आप रिवाइज करें. जब आप सेशन अटेंड कर रहे हैं, इतने अटेंशन के साथ अटेंड करिए, इतनी बार रिपीट करिए कि आपको बाद में जाके रिवाइज इतना ना करना पड़े. आप बस एक बार नजर मारे एंड यू आर गुड टू गो. ठीक है, so please pay attention on the sessions, make your notes thoroughly. If you stick with me, I can assure you very good marks in your internal and external exams. So please make sure that you stick around. 10th के बाद 11th में बहुत सारे शॉक्स लगते हैं. आपको फर्स्ट टर्म का रिजल्ट आते ही बहुत बड़ा शॉक लगेगा. सो प्लीज लाइटली मत लीजिए, सिलेबस बहुत है. Stay up with it and keep practicing questions as we go. And I am available. Either you can reach out in the comment box below. You can also write me an email at tsclassesicsc@gmail.com. You can also reach out to me on the Telegram channel. So that will be all for the session today, and we will catch up in the next one.